أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو جنہوں نے ریسپانس کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمیں ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہترین مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم کتنے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یقیناً آپ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان سب اچھے کاموں میں یہ کام بہترین ہے جب آپ اللہ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کی محبت ہے اللہ کے لیے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن کو، کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ کے بھیجے ہوئے اس فائنل میسج کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے۔ یہ تو محبت کی پہلا ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ جانو کہ آپ کا کنیکشن کیا ہے نا؟ تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اگلا ایک گھنٹہ نہیں ہے، سوری 45 منٹس، وہ اتنے اسپیشل ہیں، وہ اس وقت وہ وقت آپ کے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ سے ہم کلاس میں رہیں گے۔ سو آؤ قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ فورتھ ویک اللہ کے کرم سے شروع ہو گیا ہے۔ آف کورس اٹس اوکے اگر یہ نہیں ہو پایا ہے آن سائٹ، آن لائن پہ شفٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ یہ بڑی بات ہے کہ ہمارا کنیکشن ٹوٹا نہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈینٹس اسٹل کلاس کو لائیو جوائن کر رہے ہیں، اور جن کی کوئی واقعی کوئی جینون ریزن ہے وہ ریکارڈنگ بھی سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، کنیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کر ہی لیتے ہیں، ہے نا؟ تو فورتھ ویک کا آج پہلا دن ہے، دوسرا دن ہمارا وینسڈے کو نہیں ہوگا بلکہ کل ہوگا، کیونکہ آئی نو دیٹ عید کے قریب آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہے، تو ہم زیادہ اسے پرولونگ نہ کریں۔ ہماری جو ڈسکشن ہوئی آپ کے کالج کے ایڈمنسٹریشن سے، تو اس میں بھی ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ڈیلی بیسس پر ہم یہ 45 منٹس دے سکتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈینٹس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی میں سوچ رہی تھی کہ وینسڈے سے آگے ہم نہ جائیں، تو اس سینیریو میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کی کلاس ہوگی، اور جو ہماری دوسری کلاس ہوتی ہے وہ کل ٹیوزڈے کو ہوگی، اور وینسڈے کو ہم کلاس ضرور رکھیں گے بٹ وہ ریویژن کی ہوگی۔ اس میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے ہم اپنے میکسیمم اسٹوڈینٹس کو جوائن کرائیں جن کی پچھلی کلاسز اسکپ ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی بھی ہوئی ہیں تو ایک گھنٹے، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، یا جو اگر 40 منٹس ہی ہیں کوئی بات نہیں، تو اس میں ہم پچھلے سارے کانسیپٹس ریوائز کر لیں گے۔ تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے، آپ کی جہاں کوئی کمی رہی ہوگی وہ بیسکس جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو وینسڈے ہمارے لیے سب سے زیادہ اسپیشل ہوگا، اس کے بعد ہم عید کے لیے جائیں گے، اور پھر عید کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے کنٹینیو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آف کورس، اور آپ کے جو ہوم ورکس ہیں وہ آپ مکمل کرتے رہیں ساتھ ساتھ، کہیں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو میرا نمبر آپ کے سامنے ہے، ہوم ورک کرنے میں کوئی کوشچن نہیں آ رہا ہے فرینڈ سے ڈسکس کریں، سلائڈ سے ڈھونڈیں، پھر بھی نہ ملے تو اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجیں، میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اٹمپٹ کرنا بہت ضروری ہے، سو دیٹ آپ کا نام پراپر آپ لسٹ آؤٹ ہوں، آپ کے ہوم ورکس ہونے کی بیس پر آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے، اور آف کورس وی آر ڈوئنگ دس فار دی سیک آف اللہ، رائٹ؟ سو آگے چلتے ہیں ہم۔ اس وقت میں الفلاح منزل اسلامک کمیونٹی سینٹر E11 4 اسلام آباد میں موجود ہوں، اپنے آفس میں۔ یہ بلڈنگ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، میرا اور آپ کا، ہم سب کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب لائک مائنڈڈ فیملیز اکٹھی ہوں، اور ہمارے اکٹھے ہونے کی بیس یہ ہو کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، جیسے عرب کے لوگ کرتے ہیں، اس پہ غور کریں، کسی ٹرانسلیشن کا سہارا لیے بغیر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کی ہیلپ سے ہم 24/7 اپنی لائف کو اس طرح گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ تو یہ ہمارا ویژن ہے، اور یہ میسج دوسروں کو کنوے کرنا بھی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اب تک جو چیزیں ہم نے اسٹڈی کی ہیں اس میں ایک ہے سورۃ الفاتحہ، جو آپ نے اسٹڈی کی تھی اچھے سے۔ جن لوگوں نے اس کا کوئی حصہ اگر ہمارا اسکپ ہوا ہے تو ہم اس کو آف کورس ہم آگے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کو ہماری جو ریویژن ڈے ہوگا اس میں پریکٹس کر لیں گے تھوڑا سا مزید، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے ہم نے 12 ہیبٹس سورۃ الفاتحہ میں سے پک کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، وہ انشاءاللہ وینسڈے کو کور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اذان
को अंडरस्टैंड किया था बड़े खूबसूरत अंदाज में। और मुझे इतने मैसेजेस आपके कॉलेज की गर्ल्स के आए कि हमें इतना अच्छा लगे, अजान हम कब से सुनते हैं बट इस एहसास के साथ हमने कभी सोचा नहीं। तो अब जब ये लेसन अटेंड करके हमने अजान सुनी तो हमें बड़ा खूबसूरत महसूस हुआ, और हमें एहसास हुआ कि हमने कितनी अजानें अपनी मिस कर दी हैं, इस एहसास के बगैर हमने सुनी है। तो इसी तरह से फजर की अजान, इकामत, वुजू की दुआ और रुकू और सुजूद हम कब से कर रहे हैं बट हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अल्लाह के सामने सरेंडर कर रहे हैं, घुटने पकड़ कर झुक जाते हैं, रुकू होता है, फिर सुजूद अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह से राब्ता कायम नहीं हो रहा, इतने खूबसूरत करने के बावजूद। तो ये जब हमने इसको कनेक्ट किया है तो सबसे ज्यादा रिस्पांस इस पर आया है कि इतना खूबसूरत कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बनता है अल्लाह ताला से, बेहतरीन कनेक्शन बनता है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वो चार चार बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं, रुकू में कौन सी चार बातें जहन में आनी चाहिए, सजदा में कौन सी, दरमियान में जो अल्लाह की तारीफ हो रही है और हमारे नबी जो खास तारीफ करते थे वो क्या है। तो ये सारी चीजें हमने की थी और कल हम इनको थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे। ये इतना सा काम है। तो आप बीएस के स्टूडेंट्स के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग इतनी किताबें एक एक सब्जेक्ट में इतनी बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स करते हैं, सिर्फ इस कोर्स में आपकी नमाज मुकम्मल हो रही है अब तक। आज हम नमाज के कुछ और हिस्से पढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं नमाज के बाद की दुआ, सना। कल के लेसन में सूरतुल इखलास को स्टडी करेंगे जरा डिफरेंट अंदाज में, जैसे आपने शायद कभी नहीं समझा होगा। तो हमारी नमाज मुकम्मल होगी। तो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए क्या ही मुश्किल है कि वो सिर्फ नमाज को एक यूनिक अंदाज में इस तरह अंडरस्टैंड करें कि वो जब सुना तो हम सब ने हुआ है, मैंने और आपने, कि नमाज अल्लाह से मुलाकात है, लेकिन हमें फील क्यों नहीं होता। तो जब आप इस तरीके से इस एंगल से अंडरस्टैंड करते हैं जैसे आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो फिर आप वही चीजें फील करते हैं एंड ऑटोमेटिकली फिर आपके दिल से अदायगी होती है नमाज की। और जब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, यानी फिर आपका कनेक्शन बिल्ड होता है। अल्लाह ताला जानते हैं अब आप दिल से अदा कर रहे हो, फिर जो नेमतें अल्लाह की मिलती हैं वो हिसाब करना मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। आइए अब हम आज का लेसन देखते हैं। तो आज हमने माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स ये सब चीजें स्टडी करनी है। अब आप मुझे बताएं, ये आपके लेवल पर माशाल्लाह आप इतने एजुकेटेड लोग हैं, बीएस के कितनी मुश्किल चीज़ें स्टडी करता है। तो आज आपने थोड़ी सी देर में ये जो दुआएं हैं, एक ग्रीन कलर में और मैरून कलर में आपको नजर आ रही है, और उसके बाद आप सना देख रहे हैं जो नमाज के शुरू में पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो आप में से जरा हैंड रेज करें, कोई एक मुझे ये पढ़ के सुना दे। एनी ऑफ यू इसको पढ़ दें ताकि फिर मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाऊं। अच्छा, ये अशरफ खान के नाम से कौन सी सिस्टर है, प्लीज माइक ऑन करके बताएं। खाला अशरफ। खोला अशरफ, खोला आपने ना अपने आप को रीनेम करना है। ये पढ़ने के बाद ना सर राइट साइड पे डॉट्स आ रहे होंगे, उसको क्लिक करें, लिखा आएगा रीनेम, वहां पे अपना ओके। नाम एंटर करें, वरना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी माय डियर। सर्टिफिकेट ओके। अशरफ खान नाम से बन जाएगा। ठीक है। ओके चले पढ़ के बताइए। पहली वाली दुआ। जी जी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। माशाल्लाह, दूसरी दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। माशाल्लाह, सना सुनाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन तजवीद के साथ आपने सुनाया है। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। और पहल थैंक करने वालों का तो रिवॉर्ड वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो नेक कामों में जो है ना वो सबको आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है। सो आगे चलते हैं हम और अंडरस्टैंड करने की इसको कोशिश करते हैं। ये है जी हमारे सामने दुआ जो अभी हमारी सिस्टर खोला राशिद हमें, खोला अशरफ आई बिलीव, हमें सुना रही थी। ठीक है। तो ये दुआ के पहले शुरू के अल्फाज हैं, इनको जरा गौर से सुनिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। रब्बना, ए हमारे रब। अब आपने एक टेबल पढ़ा था, जो लोग इस क्लास में प्रेजेंट थे उनको याद होगा, हमने पढ़ा था रब्बू हो उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बू का तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बू को तुम सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो इसमें हमने पढ़ा था रब्बुना हमारा रब, हमने पढ़ा था दीनुना हमारा दीन, किताबुना हमारी किताब, कलमुका कलमुना हमारा कलम, यानी जिसके आखिर में ना आए उसका मतलब होता है हमारा। तो रब्बुना हमारा रब। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां ऊपर लिखा है रब्बाना। तो रब्बुना और रब्बाना में बेसिक फर्क क्या है, क्या आप में से किसी को पता है?
अगर पता है तो प्लीज हैंड रेज करके बताइए। अगर आपको पता है कि रब्बना और रब्बना में, रब्बुना और रब्बना में बेसिक फर्क क्या है। चले मैं बताती हूँ। आपने याद रखना है, जब कभी आप किसी से अपने रब के बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो आप कहते हैं रब्बुना, हमारा रब ऐसा है, हमारा रब वैसा है, रब की शान बयान करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट रब से बात करते हैं, रब को पुकारते हैं, तो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको? माइक ऑन करके बताइए। यस। जी। दैट्स राइट, माशाल्लाह। तो ये आपने जेहन में रखना है, अक्सर दुआ मांगने वाले लोग पुकार रहे होते हैं रब्बना रब्बना, यानी वो अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और जब अल्लाह के बारे में कोई बात करेंगे किसी से, हमारा रब, तो रब्बुना कहेंगे। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट बात। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। लिखा है आती ना। ये जो देखने में एक लफ्ज लग रहा है ना, असल में ये दो हैं, आती और ना। आती का मतलब है तू दे, तू अता कर, राइट। ना हमें, जैसे अभी हमने कहा था रब्बुना हमारा रब, रब्बना है हमारे रब, तो ये नून जबर ना, हमारे, हमें, ये वाला मानी दे रहा है। आती ना, तू दे, तू अता कर हमें। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं कि तू हमें दे। क्या दे, इसको देख लेते हैं। फिर दुनिया, दुनिया में। अब ये जो दुनिया का फी का मतलब तो में होता है, आपने ये पहले स्टडी किया है। दुनिया क्या होता है, जैसे एक लफ्ज है ना अकबर बड़ा, उसका मोनस है कुबरा, असगर छोटा, मोनस सुगरा, अदना किसी भी हकीर चीज को कहते हैं बनिस्बत आला चीज के। एक आला चीज होती है, एक अदना होती है। अदना का भी मोनस है दुनिया, आप सोचें। यानी वो लफ्ज जिसको आमतौर पे हकीर चीज माना जाता है, कोई इतनी वैल्यूएबल नहीं है, जो ज्यादा स्पेशल नहीं है। आप सोचें दुनिया की अहमियत क्या है, दुनिया का नाम ही क्या है। आप सोचें जरा, अदना का मोनस है ये लफ्ज, तो हम उसको कितनी वैल्यू कर रहे होते हैं। हमें लगता है सारी चीजें बस यहीं पे हमें मिले, है ना। तो बड़ी समझने की बात है। एक दुनिया का मतलब ये भी होता है करीब की चीज। आखिरत अ, आखिर में आएगी ना, दुनिया अभी हमारे पास है, तो करीब की चीज को भी कहते हैं। आगे चलते हैं। हसना, भलाई, हसीन, भली चीज, खैर की चीज। हसन मुजक्कर नाम है, हसना उसका मुअन्नस है। हसना से हसनात मुअन्नस की जमा बनता है। जैसे हमने सीखा था मुस्लिमातुन, मुस्लिमा एक मुसलमान खातून है। अगर ज्यादा होंगी तो वो गोल ता हटा के हम अलीफ और लंबी वाली ता लगाएंगे, मुस्लिमात बनेगा। ऐसे स्टडी किया था ना। तो ये उसी तरह से हसना एक मोनस, भली चीज, और हसनात ज्यादा। तो मोनस की बात हो रही है तो देखिए फूल भी मौजूद है यहाँ पे, राइट। वफी और में। अल आखिरा आखिरत, आखिर मुजक्कर है, आखिरा मोनस है। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमा, आबिद से आबिदा मोनस बनता है, इसी तरह आखिर से आखिरा, आखिरत। ठीक है। जरा देख के बताइए आपका अंदाजा क्या है, अल आखिरा लफ्ज आपके ख्याल में इसम है, फेल है, या हर्फ है? अंदाजा लगाइए जरा। कोई आइडिया कर सकते हैं यहाँ पे? अल आखिरा इसम। इसम है, बिल्कुल सही। आपको कैसे पता चला कि इसम है? अलिफ लाम ये से में। नाम है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अलिफ लाम से। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, वंडरफुल, आई अप्रिशिएट। मैंने बताया था अगर किताबुन लिखा है, किताबन, किताबिन, आखिर में डबल पेश जबर जेर हैं, तो वो एक कोई आम इस्म होता है। और खास इस्म तब होता है जब शुरू में अलिफ लाम आए, तो इसका मतलब है अलिफ लाम इस्म के साथ आता है। वेरी गुड, आपने सही पिक किया है। और हसना, हसन से हसना जो अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं कि हमें तो दुनिया की सारी अच्छी चीजें, भली चीजें अता कर, राइट। और आखिरत की भी भली चीजें अता कर। अब जेहन में आएगा कि हाँ दुनिया की भली चीजें कौन सी हैं। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आप जरा रिकॉल करें ये दुनिया में जो चीजें हम मांगते हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं। जैसे जिंदगी गुजारने की जरूरतें हम चाहते हैं सब अच्छी अच्छी हमारे पास हो, सेहत हो, हमारे खानदान में कामयाबी हो, फलाह हो, प्रस्पैरिटी, खुशहाली, इज्जत, डिग्निटी, माल दौलत, जो भी पैसा वैसा हम कमाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, दोस्त, वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है। तो अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, अल्लाह ने कहा है ठीक है दुनिया में जितना रहना है उसके मुताबिक आप ये चीजें जितनी हासिल करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से, दुरुस्त तरीके से करें, आप इनको हासिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी चीजें भी होती हैं जो दुनिया में भी फायदा देती हैं और आखिरत के लिए भी इन्वेस्टमेंट होती हैं। जैसे अच्छा इल्म हासिल आपने किया, वो आपसे दूसरों तक मुंतकिल होगा, आप दुनिया से चले जाएंगे फिर भी उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा आखिरत में भी।
अच्छा अकीदा यानी बिलीफ, अच्छे अमल, आ, आपकी सिंसेरिटी, इखलास, आपके अच्छे अखलाक, आपकी तरबियत वगैरह, अमन सुकून, ये सारी चीजें। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स, एक बात को आपने भूलना नहीं है, और वो बात ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में हमें समटाइम्स कुछ चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और हमें लगता है नहीं इस चीज में मैं बहुत इंजॉय करूंगा, ये मुझे बहुत मजा आएगा, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अल्लाह और उसके नबी ने बता दिया है कि वो चीज आपकी आखिरत को तबाह करेगी, उसको मत करो। ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मना है कि उनको इस्तेमाल नहीं करना, कम है वो चीजें। बाकी सब तो अल्लाह ने कहा है इस्तेमाल करो, एंजॉय करो, लाइफ को अच्छे से इस्तेमाल करो, आखिरत को अच्छा बनाओ। चंद चीजें हैं। अब वो जो चंद चीजें हैं अगर वो भी हमें अच्छी लग रही हैं दुनिया में, लेकिन आखिरत को तबाह कर रही हैं, तो हमें बताया गया है कि वो हसनात नहीं होती, वो इस दुआ में नहीं आती। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज भली अच्छी हो ही नहीं सकती जो हमारे अंजाम को खराब कर दे, हमें आखिरत में तबाह करे। उसके अलावा हर चीज हम मांग सकते हैं। कितनी प्यारी बात है ये। और फिर जब हम आखिरत की भलाई मांगते हैं तो हम मांगते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो, खुश हो, हमें जन्नत मिले। जन्नत कोई मामूली छोटी सी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे ज़हन में बचपन में मैं सोचती थी कोई एक पैलेस है, कोई महल है, खूबसूरत सा होगा, उसमें दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी एंड ऑल दैट। जैसे मेरे स्टूडेंट्स में से किसी ने पूछा कि मैम ये थोड़ी ओल्ड फैशन हो गई है बात, हम तो अब पिज्ज़ा खाते हैं और ये चीज़ें खाते हैं, क्या ये भी मिलेंगी? ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया और मैंने कहा जी बेटे बिल्कुल, ये आला चीजों का जिक्र हुआ है, मतलब ये कि आपको हर बेहतरीन चीज, हर चीज जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। ये जो दुनिया में चीजें हम समझते हैं बड़ी मॉडर्न चीजें हैं, ये भी अल्लाह की देन है कि हमारा जेहन काम करते हैं और हम बनाते हैं। तो दुनिया में हमें लगता है सबसे अपडेटेड आईफोन, आजकल वो ऑरेंज कलर में चल रहा है ना, जो मुझे जरा पसंद नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हम बड़े इंप्रेस होते हैं। अरे अल्लाह ने ये तौफीक दे दी इंसान को, उसने बना लिए। आप सोचें जिस अल्लाह ने दुनिया में ऐसी चीजें दे दी हैं, दुनिया को तो अल्लाह ने कहा है ये तो सिर्फ एग्जाम है, इट्स नॉट रिजल्ट, मतलब आपका इनाम तो है ही नहीं, वो तो आपको जन्नत में मिलना है, ये तो टेस्ट की जगह है। तो जिस अल्लाह ने टेस्ट की जगह पे ऐसे ऐसे फोन और गाड़ियां दे दी हैं, सोचें जन्नत में जो चीजें होंगी वो कितनी स्पेशल होंगी, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हमें जैसा जो जिस तरह का जितना चाहिए होगा वो हमें मिलेगा। हमारी सोच है, जो हम सोच सकते हैं, जो हमें लगता है नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, वो भी अगर हमें चाहिए तो मिलेगा। ये वादा है अल्लाह का। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जन्नत को हासिल करें। ठीक है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, यानी वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे स्पेशल है, सबसे खास, सबसे वैल्यूएबल, है ना, सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सोचिए जन्नत में उनका दर्जा, उनका मकाम कितना खास होगा, तो जो उनके करीबी लोग होंगे उनके लिए कितनी बरकत का बाइस है नबी का साथ होना। फिर हमारे जो अपने लोग, आप जानते हैं आज हमारी, आपके कॉलेज की हमारी एक सिस्टर है, मेरे भी नाम से इनमें नहीं आ रहा, उनको मुझे मैसेज आया आप सुबह, आज सुबह, कि मैम आज मैं क्लास नहीं ले सकूंगी, मेरे नाना जान की वफात हो गई है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने उनको ताज़ियत का मैसेज भी किया। अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए उनके नाना को। आप लोगों से भी जिक्र हो गया, आप भी दुआ करें उनके दर्जात बुलंद हो। तो मामला ये है कि हम सब ने चले जाना है। कल वो यहाँ मौजूद थे, आज नहीं है, आज हैं हम, कल नहीं होंगे। ये बात 100% ट्रू है, ये कोई डाउट की बात नहीं है। हम एक दिन आएगा हम नहीं होंगे। सो उस टाइम के लिए याद रखें कि उसके लिए कुछ कर लें, खाली हाथ होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट। सो हम हमारे में से बारी बारी सब जा रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं, हम क्यों रोते हैं? क्योंकि वो जुदाई हमें तकलीफ देती है कि हम जुदा हो रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान को ये पता है कि हम आखिरत में मिलेंगे। अगर आखिरत में हमने सही अमल किया तो हम सब जन्नत में इकट्ठे होंगे। सो हम अगर जन्नत में हमें हमारे अपनों का जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनका साथ मिल जाए, तो ये कितनी बड़ी हसनात में से है, भलाई है। और फिर सबसे बड़ी बात, वो खास लोग होंगे जिनसे अल्लाह ताला सामने आके हम कलाम होंगे, वो अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे। जब ये बात इंसान सोचता है तो बाकी सब चीजें इससे कम लगती हैं, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। ये खास तबके के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ये वैल्यू करेंगे कि वो बगैर किसी पर्दे के अल्लाह ताला से गुफ्तगू फरमाएं, वो अपनी आंखों से अल्लाह को देख पाएंगे। सुभान अल्लाह। सोचना ही कितना अच्छा लगता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया की भी सारी ये जो हमने भलाइयां जिक्र की हैं ये अता करे, और आखिरत की भी करे। आखिरत की तो जरूर बिल जरूर करे, क्योंकि वो परमानेंट है, दुनिया तो फिर भी खत्म हो जानी है। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन आप लोग भी दुआ कर रहे हैं।
आखिरी हिस्से में दुआ के हम कहते हैं वकीना अजाब अन्नार। वकीना, तीन इसको ब्रेक करके ना तीन टुकड़े हो सकते हैं। और बचा हमें, हम अल्लाह से एक और दुआ मांग रहे हैं, तो हमें बचा, किससे बचा? अजाब से। अजाब होता है सजा, नेक्स्ट लेवल की सजा। माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। यानी अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखे, हम सबको, हमारे माँ बाप को, हमारे सब प्यारों को। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में कोई थोड़ी सी तकलीफ, पनिशमेंट, कोई चीज हो, एक दूसरे से कोई कोई टीज कर दे तो हम तकलीफ में होते हैं। वो अल्लाह की तरफ से जानबूझ के दी गई सजा होगी, उसको अजाब कहते हैं। तो वो किस चीज का अजाब होगा? आग का। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। मैंने सुना कि मेडिकल के लोग, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जलने की, जब किसी का हादसा हो जाता है ना, जलने की जो तकलीफ है वो हर तकलीफ से ज्यादा है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो जो आखिरत की जहन्नुम की आग और उसकी सख्ती और उसको बर्दाश्त हम कैसे करेंगे? दुनिया में जरा सा खाना बनाते हुए, आयरन करते हुए, हीटर के साथ कुछ लग गया, जरा सा कुछ जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो ये दुआ हमने आगे जाके नहीं मांगनी। डोंट थिंक कि अभी तो मैं नानी माँ दादी माँ बनूंगी तो मांगूंगी। हमें नहीं पता हमारे पास कितनी जिंदगी है। अल्लाह ताला उम्र दराज करे आप सबकी। मौका दे कि हम ज्यादा से ज्यादा आखिरत के लिए काम करें, लेकिन कुछ पता नहीं है एक लम्हे का भी। नन्हे नन्हे बच्चे भी चले जाते हैं, उम्र की तो बात ही नहीं है। इसलिए दुआ मांगने में देर ना करें। इस दुनिया में दुआ मांगे, वकीना अजाब अन्नार, अल्लाह में आके अजाब से महफूज रखना। हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो इंतबाह यानी वार्निंग ये है कि गुनाहगार मुसलमान, ये जो हम कहते हैं मैं मुसलमान हूं मैं तो जन्नत में जाऊंगा, याद रखें, गुनाहगार मुसलमान भी सीधा जन्नत में नहीं जाएगा। पहले उसकी सफाई होगी, जो उसने गलत काम किए होंगे। अब वो सफाई, उसके साथ लेन देन हिसाब किताब होगा। जब वो पूरा कर लेगा तो उसको जन्नत में भेजा जाएगा। अब वहां का हिसाब किताब भी कितना सख्त है। जो जिंदगी हमेशा की है, जो जिंदगी हमेशा की है उसमें थोड़ी सी सजा भी तो कई सालों की होगी। जो जिंदगी हमेशा की है, आप सोचिए जरा। ये पॉइंट बड़ा सेंसिटिव है कि सबसे पहले तो इंसान जो गुनाह करता है ना, सबसे आसान तरीका ये कि वो इस्तिगफार करके मुआफी मांग ले। इसलिए इसमें देर ना करे, रोज हर वक्त मुआफी मांगनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह मुझसे हर वक्त कोई ना कोई गलती हो रही है जो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, अपनी फराइज छोड़ रहा हूँ, अदा नहीं कर रहा पूरी तरह, या गलतियां हो रही हैं या अनजाने में हो रही हैं, अल्लाह तो मुझे माफ कर। हर वक्त मांगे दुआ कि जिस लम्हे दुनिया से जाएं पिछली चीजें माफ हुई हों। फिर जो चीजें इस तरह से इससे भी ज्यादा हो, इस्तिगफार से हिसाब पूरा हमने नहीं किया अल्लाह से, तो फिर कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को इतने चैलेंज देते हैं, मुश्किलात, कि उसके वो गुनाहों का हिसाब वहीं पे क्लियर हो जाए। फिर इससे भी ज्यादा हो तो अब मौत के वक्त आपने सुना होगा कि अ, अल्लाह बेहतर जानता है, जो दुनिया से जाने वाले हैं कभी कभी वो वक्त बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो अल्लाह ताला वहां पर उसको क्लियर करते हैं कि आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। फिर उसके बाद जो दुनिया से चले जाते हैं, डेथ और कयामत के दरमियान का जो ड्यूरेशन है, ये भी एक वक्त होता है। फिर भी उसके बाद की जो सजाएं हैं जो अल्लाह ने देनी होती हैं, उसके लिए इंसान को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो आपको क्या लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें सबसे आसान तरीका सफाई का, अपने आप को क्लियर करने का क्या है? जल्दी से बताइए। कौन बताएगा? माइक ऑन करके बताइए जरा। इनमें सबसे आसान तरीका अल्लाह के सामने अपने आप को गुनाहों से क्लियर करने का आपको क्या नजर आ रहा है? इस्तिगफार, दुनिया की मुश्किलात, मौत की मशक्कत, कब्र हशर, या जहन्नुम की आग? आसान क्या लग रहा है आपको? इस्तग़फ़ार। इस्तिगफार, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। अनीसा यूब, आई अप्रिशिएट कि आपने ध्यान से सुना और रिस्पॉन्स किया है। तो इस्तिगफार हमें बार बार करना चाहिए, ये सबसे आसान है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये है कि वो 100 मरतबा से भी ज्यादा जो है ना वो इस्तिगफार करते थे। और ये जो काउंट्स नंबर होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्यूरेट नंबर, बल्कि एक्सपर्ट्स बताते हैं इसका मतलब होता है कसरत से, यानी बहुत ज्यादा, कसीर। तो हमें, जब अल्लाह के नबी जो वैसे ही परफेक्ट थे वो इस्तिगफार कर रहे हैं, तो मुझे और आपको तो बहुत जरूरत है। हमारी तो गलतियां ही बहुत हैं। हमने तो, अगर हम नमाजें अदा करते भी हैं तो वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। सोचें, अब तक तो हमें समझ ही नहीं आती थी, अब हमने समझी है। तो आप ये कोर्स के जरिए तो इसको फील करके अदा करें। यानी हर चीज में हमारी कमी है, तो हमें बहुत इस्तिगफार करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमाए, नेक अमाल की तौफीक दे, आग से बचाए और जन्नत में दाखिल फरमाए। ठीक है। एक और दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाई, बड़ी प्यारी दुआ है। हजरत मुआज हैं, उनके सहाबी हैं, उनका हाथ पकड़ा मोहब्बत से। इमेजिन करें कितना प्यारा सीन होगा। अल्लाह के नबी किसी का हाथ पकड़ रहे हैं और मोहब्बत से कह रहे हैं, कसम उठाते हुए कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुआज।
और तुम्हें एक एक खास चीज देने वाला हूँ, वसीयत। उस दुआ को तो कभी छोड़ना मत, जो तुम्हें मैं अभी बताऊंगा। नमाज के बाद उसको अदा करने का अल्लाह के नबी ने गाइड किया। और वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। और इसमें क्या है? ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद कर मेरी, अला जिक्रिका, तेरी याद करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नि इबादतिका, और तेरी अच्छी इबादत करने का। यानी अल्लाह के लिए अल्लाह को याद करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की इबादत करना। इसके लिए भी सिखाया जा रहा है कि अल्लाह की मदद मांगो। हम ऐसे अल्लाह ताला के सामने इतने आजिज होना चाहिए कि अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरा ईमान भी, ऊपर से शैतान हर वक्त मेरे ऊपर है, हर वक्त अटैक्स कर रहा है मुझे, ए अल्लाह आपसे दूर करने की चालें चल रहा है। तो आप मेरी मदद करें, मेरे ईमान इतना मजबूत हो जाए, मैं आपको हर वक्त याद रखूं। आप मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूँ। आपका हक है ये कि मैं आपको सबसे ज्यादा याद करूं, आपका शुक्र करूं, आपकी बेहतरीन इबादत करूं। तो ये दुआ हमें हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, अल्लाह के नबी ने सिखाई है। अब आप सोच रहे होंगे नमाज के बाद क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने तौफीक अगर दे भी दी है ना हमें नमाज की, तो भी हमारी नमाज बिल्कुल बेरूह नमाजें होती हैं। हम फील कुछ और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। जैसे हमने इस कोर्स में समझा है, क्या वो सब चीजें हम फील करते हैं नमाज में? इतना टाइम देते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी होती है। अल्लाह का हक उससे ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह, तू मुझे मेरी मदद कर, तुझे याद करने, शुक्र करने, अच्छी इबादत पे, कि अगली दफा जब मैं तेरे सामने आ जाऊं, आऊं, हाजिर हूं, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से हाजिर हो सकूं। ठीक है? ये फीलिंग जेन में रख के आपने ये दुआ आज ही जोर के बाद से जो है ना वो आपने पढ़नी शुरू करनी है, मांगनी है। ठीक है? दुआ मांगी जाती है। और तीसरी चीज है आज की सना। सना हम कब पढ़ते हैं नमाज में? बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? सना हम नमाज में कहाँ पढ़ते हैं? शुरू में, दरमियान में, आखिर में? शुरू में। शुरू में तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर के बाद तो हम कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा। ये एक पूरा सेंटेंस होता है। पाक है तू ए अल्लाह, हुआ भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए, ये दूसरा सेंटेंस है। व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, ये तीसरा सेंटेंस है। व तआला जद्दुका, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, ये चौथा सेंटेंस है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये पांचवा है। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, जरा इमेजिन करें हम किस तरह पढ़ते हैं। हम तो इतनी जल्दी में होते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं कि हम पांच सेंटेंसेस अल्लाह के सामने अदा कर रहे हैं, पांच बातें कर रहे हैं अल्लाह से। सोचो। तो अब आप यार जरा इसको फील करें, और फिर उस अंदाज में जैसे अल्लाह की शान है इसको अदा करें। तो हम ये जो सना नाम है ना, इसके अंदर हमद और तस्बीह दोनों चीजें आती हैं। हमद का मतलब है इस चीज का बयान करना कि अल्लाह में तमाम खूबियां हैं, तभी तो वो तारीफ के काबिल है, हमद। तस्बीह का मतलब है कि ये कहना कि अल्लाह परफेक्ट है, उसमें कोई नकाइस, कोई कमी, कोई खराबी है ही नहीं। यानी खूबियों का होना हमद है, खराबियों का ना होना तस्बीह है। इन दोनों को मिला के सना बनता है। ठीक है ना? और पाक है, सुबहाना पाक है का तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बी हमदी का, ये चार लफ्ज जुड़ के बन रहा है, और तारीफ है तेरे लिए, ये तेरे साथ। उसके बाद व तबारक, व और तबारक दो लफ्ज हैं, और बरकत वाला है इस्मु का, तेरा नाम। ठीक है? फिर व ताला, ये दो लफ्ज हैं। जद्दू का, ये भी दो लफ्ज हैं, तेरी बुजुर्गी। जद बुजुर्गी को कहते हैं, जैसे आबा व अजदाद हम कहते हैं ना, जद्दे अमजद हमारे जो बड़े हैं उनको। तो बुलंद तो बाला है तेरी बुजुर्गी, यानी अल्लाह की बुजुर्गी, सीनियोरिटी होती है ना बुजुर्गी, तो उसमें अल्लाह सबसे सीनियर है ना, इसलिए तेरी जो बुजुर्गी है वो आलीशान है। फिर हम कहते हैं वला इलाहा गैरुक, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे। यानी आखिर में फिर अल्लाह की वहदानियत, वननेस ऑफ अल्लाह की बात करते हैं। जरा इमेजिन करें कितनी खूबसूरत बातें हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं, और हम ये खूबसूरत एहसास मिस कर देते हैं। इमेजिन अल्लाह ताला हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई दे रहे हो, तो हम कितनी मोहब्बत से ये चार पांच बातें करेंगे, सारी नमाज मुलाकात करेंगे अल्लाह से, कुछ नहीं सोचेंगे हम। यकीन कीजिए अल्लाह ताला इसी तरह हमें देख रहे होते हैं, सिर्फ हम देख नहीं पाते, हमारी आंखों को भी वो इजाजत मिली नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। तो कितनी तवज्जो और मोहब्बत देनी चाहिए, और अल्लाह को हमारे दिलों का हाल भी पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है? तो ये बड़ी खास बात है। स्माइल कीजिए, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके मुस्कुराते चेहरे नहीं देख सकती इस वक्त। फिर भी मुझे यकीन है कि आप मेरी बात इतनी तो मान रहे होंगे। स्माइल करें, आपने इतना खूबसूरत हिस्सा आज नमाज का सीखा है, नमाज का शुरू का हिस्सा, नमाज के आखिर का एक हिस्सा। ठीक है?
اور یہ ساری چیزیں آپ کتنی دیر بہت سارے لوگوں کو تو یاد بھی ہو گئی ہوں گی، اور اس کے بعد جب میں سلائڈز بھیجوں آپ تھوڑا سا اسے ریویو کر لیجیے گا میم اور نماز میں اس کو فیل کیجیے گا. جی بیٹے. میم میں کچھ کہنا تھا. میم جی جو جی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ جو دعا ہے، اس میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہمیں چار چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب القبر اینڈ وقنا عذاب الدجال. جی جی بالکل، یہ بھی کہا جاتا ہے اف یو آر گوئنگ ٹو ایڈ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیونکہ اوتھینٹک قرآن کی آیت ہے تو پھر اس آیت کا کو جو درجہ ہے وہ تو اور ہی ہے نا، رائٹ. لیکن آف کورس پناہ تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے مانگنی چاہیے، آپ اس کو ڈیٹیل میں تو بہت چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ ایک وہ بیسک چیز ہے. ظاہر ہے آپ سزا کی طرف جا رہے ہو تو اس کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ جی آپ کو ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں مانگو تو یہ اچھی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ فیل کر کے مانگ رہے ہو، دل سے مانگ رہے ہو تبھی تو اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. جی تم پڑھ نہیں رہے دعا کو پڑھا نہیں جاتا، مانگا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز مانگی جاتی کسی سے، ہے نا. بڑی پیاری جی بات انیسا نے ایڈ کی ہے اینڈ آئی اپریشیٹ. تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اسے ہماری زندگی میں لیا، ہم نے اس کو مطالعہ کیا پورے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، امیجن کر کے، فیل کر کے، اور اب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں تو واقعی ہمارے حق میں قبول کر، ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں عطا کر، آگ کے عذاب سے ہمیں تو بچا، اور ہمیں تیرا اچھا ذکر کرنے، شکر کرنے، عبادت کرنے والا بنا. اور پھر جو تیری تعریف کا طریقہ ہم نے ثنا میں سیکھا ہے 5 جملے، وہ ایکنالج کرنے والا بنا، کہ وہ بھی ہمارے عمل میں نظر بھی آئے. احتساب کریں کہ اب سے پہلے ہم نے اتنی دفعہ یہ چیزیں دیکھی پڑھی ہیں لیکن ہم نے کبھی احساس کے ساتھ پڑھی نہیں، وہ کیا ہی ملاقات ہے. چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا. فیوچر کا پلان بنائیں کہ اب ان نماز کے آغاز اور انتہا کے جو یہ جو 2 خوبصورت حصے ہم نے سیکھے ہیں ان کو ہم کتنی محبت سے ادا کریں گے. پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیا کیا رحمتیں آتی ہیں، ہم حیران ہو جائیں گے، یقین کریں. اور تبلیغ کریں گے، دوسروں کو یہ میسج کنوے کریں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں جی گرامر کی طرف. اگلے 10 منٹس ہیں ہمارے پاس اور اس میں بڑے مزے سے آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ وہی ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں اسٹڈی کیا تھا، اسی سے نکل رہا ہے. کوئی نیا ٹاپک، نیا کانسیپٹ نہیں ہے، کانسیپٹ وہی ہے، اسی کی نیکسٹ لیول پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. سو گرامر از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. قرآن کو ٹرانسلیشن پڑھنے کا مطلب ہے آپ جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے ان کی نظر سے اللہ کے نے جو میسج بھیجا اس کو پڑھ رہے ہیں، جبکہ میسج تو ڈائریکٹ آپ کی طرف بھی ہے، آپ سب کو پڑھیں، سب جو ایکسپرٹس تھے یا ابھی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو، جیسے آپ سامنے میرے نام آ رہے ہیں آبرو زینب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آبرو یہ میسج آپ کے لیے ہے، تو آبرو کے کی محبت کا تقاضا یہی ہے نا کہ آبرو اب اللہ کی کتاب کو خود پڑھیں گے، اللہ نے مجھے دی ہے، یقین کریں اسی طرح مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو دی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے، آپ کیوں تیسرے تھرڈ پرسن کے ساتھ ہی رابطہ کر رہے ہو. آپ سب کو پڑھیں، سیکھیں، ضروری ہے، لیکن جو ڈائریکٹ رابطہ ہے نا وہ کریں. تو اس کے لیے گرامر ضروری ہے، اور گرامر ہماری آسان ہو رہی ہے ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹوٹل فزیکل انٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، یعنی ہاتھوں کے اشاروں سے، دل سے یہ سب ایکٹیویٹی کرنی ہے. کیونکہ ہم قرآن سیکھنے سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں، سب سے پہلا یہ کام ہمارا ہونا چاہیے، باقی بعد میں ایڈجسٹ ہونے چاہیے، اور یہ سب کام ہمیں مل کر کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو آئی جسٹ ریکویسٹ آپ اپنے مائک آن کر کے ذرا مجھے یہ سارے پوائنٹس بتائیں. ٹی پی آئی میں ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، بولیے پھر بتائیے، دل سے کیجیے، دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ویری نائس. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کلاس میں بہت اچھے سے انٹریکٹ کر رہے ہو آپ لوگ. تو ان ساری ایکٹیویٹیز کو لے کر سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے مل کر، یہ سب کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے کہ قرآن میں کل 78,000 لفظ ہیں جن میں اسم، فعل اور حرف ہیں. تو ہم نے اب تک اسم اور حرف کے بارے میں بہت کچھ اسٹڈی کیا اور فعل کو بھی شروع کر لیا ہے. آج کا ٹاپک بھی فعل ہے. آئیے ہم تھوڑا ریکال کر لیتے ہیں. ہم نے لیسن 1 اور 3 میں 2 ننے ننے ٹیبل پڑھے تھے، 6 لفظ. بی ایس کے لیے وہ کیا بڑی بات ہے، آپ 2 منٹ لگا کے ان کو ریوائز کر لیں، ہے نا، اللہ کی کتاب کے لیے، اور آپ کو ہزاروں لفظ کتاب کے آ جائیں گے. پھر لیسن 2 اور 4 میں آپ کو بتایا تھا کہ مذکر کا جمع کیسے بنتا ہے، واؤ اور یانون ایڈ ہوتے ہیں آخر میں. مونس کی جمع میں الف اور لمبی والی تا ایڈ ہوتی ہے. دیٹس اٹ. اس کانسیپٹ کو، اس لیسن کو، سلائڈ کو اسٹڈی کر لیں. عام اسم ڈبل تنوین والا ہوتا ہے اور خاص اسم شروع میں الف لام ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے لیسن 5، 6 اور 7 میں صرف 9 لفظ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرائے تھے.
है ना। और उन 9 लफ्जों के मानी याद करना इज नॉट अ बिग डील। क्या बड़ी बात है, मुझे बताएं जरा। इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाले आप लोग हैं, मैं आप हम सब, तो अल्लाह के लिए हम इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे भला। उसके बाद हमने लेसन 8 और 9 में लास्ट में जो स्टडी किया है लास्ट वीक, वो ये था जिसमें हाजा हा उलाई वाला टेबल था। ये सब वो सब बहुत मजे का था। हुरूफ जर की 4 बातें बताई थी आपको मैंने, वो आपको स्लाइड्स में भी भेजी हैं, 1 2 3 4 लिखी हुई हैं। और फेल मादी का पहला सेट पढ़ा था। ठीक है। फेल ज्यादातर 3 हरूफ से बनते हैं, मादी, मदारे, अम्र। मादी वो होता है जिसमें काम हो चुका हो, फेल उसी को कहते हैं ना जो काम हो। ऐसे कुरान के लफ्ज, जितने भी लफ्ज हैं जिनमें कोई काम पता चल रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और उस काम के साथ पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट में हुए, पास्ट में या फ्यूचर में, वो सारे फेल मादी होते हैं, फेल होते हैं, सॉरी वो होते हैं फेल। और फेल मादी वो होते हैं जो काम हो चुका हो गया है काम मुकम्मल, उसको कहते हैं फेल मादी। ठीक है। फेल मादी के लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुकी हूँ, आप दोबारा जल्दी से देख लें कि असल फेल जो आपको दिया जाएगा उसके आखिर में आपने ऊ, ता, सॉरी ऊ, ता, तू, तुम और ना लगाना है। पहला लफ्ज तो ऑलरेडी आपको पता चल गया ना, जिसने आपसे टेबल सुनना है उसने बता देना है फाला। फाला यहाँ आएगा, फिर अगले वाला फालू हो जाएगा, फिर फालता हो जाएगा, फिर फाल तू हो जाएगा, फिर फाल तुम, और फिर फाल ना। अब बीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये 5 सिंबल्स याद करना इज नॉट अ बिग डील। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको इजी, बिल्कुल इजी लेकर करें। शैतान कहते हैं रहने दो रहने दो, शैतान की बातों में थोड़ी आएंगे हम, शैतान के वाला अंजाम तो नहीं चाहिए ना हमें अपना। तो ये टेबल हमने स्टडी किया था। फाइला, फाइलू, फाइलता, फाइलतू, फाइलतुम, फाइलना। जहाज उड़ गया, काम हो गया माजी में, पास्ट, तो इसलिए ये सारे फॉर्मूलाज आखिर में लग रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये टेबल हमने पढ़ लिए हुए हैं, अब हम आज दूसरा सेट पढ़ेंगे और हमारी क्लास एंड हो जाएगी। सो रेडी हो जाएं जी, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये है दूसरा सेट। पहले सेट में 3 फ्रेंड्स थे, फतहा, फाइला, जाला। फतहा उनका ग्रुप लीडर है, उसके नाम पे सेट का नाम है फा। इसको फेल का पहला सेट भी कह सकते हैं, पहला पैटर्न, पहला बाग। और 2 उसके फ्रेंड्स हैं, फाला, जाला। उसके बाद स्माइल कीजिए, ये आपने याद कर लिए हुए हैं। आज हम जो दूसरा सेट देखेंगे उसमें 4 फ्रेंड्स हैं। नसरा, उसने मदद की। खलका, उसने पैदा किया। अबदा, उसने इबादत की। जकरा, उसने याद किया, या उसने जिक्र किया, याद किया ज्यादा परफेक्ट है। तो ये 4 हैं, इन सब के आगे आपने वही ऊ, ता, तू, तुम, ना लगाना है, एंड दैट्स इट। और इनकी मदद से आप कुरान के हजारों लफ्ज अगर सीख जाएं इतनी सी एफर्ट से, और आपको क्या चाहिए। कितना आसान हो गया है, देखें इस अंदाज से कुरान को अंडरस्टैंड करना। तो आइए हम आगे चलते हैं। पहला टेबल मैं आपको बताती हूँ और फिर आप हैंड रेज करें जो जो टेबल अभी पढ़ेगा। और जो जहां पर आप पढ़ रहे हैं आपने इशारे भी करने हैं, ठीक है। आप सब एक एक टेबल पढ़ते जाओगे। नसरो, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, तुमने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम सब ने मदद की। नसरना, हमने मदद की। फिर आप कहेंगे नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसर तुम नसरना। इंटरेस्टिंग है ना। बिल्कुल इसी का दूसरा फ्रेंड है खला का। तो खला का जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आ, मनाल जेब से। मनाल जेब प्लीज माइक ऑन करें। और बेटे आपने अरबी और उर्दू दोनों पढ़ना है और इशारे भी करने हैं जी। आपको मैं नहीं देख रही बट आपने फिर भी इशारे करने हैं, कैरी ऑन। मनाल जेब आपका माइक ऑन नहीं हुआ है बेटे, जरा जल्दी करें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है ना। वेरी गुड। खलक उसने पैदा किया, खलकू उसने पैदा किया, उन सब ने पैदा किया, इन सब ने पैदा किया, या उन सब ने पेश। उन सब ने पैदा किया। खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खलका खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना। सिंपल। उसके बाद है जी आबादा। तो आबादा का टेबल सुनाएंगी आबरू जैनब। हैंडरेज नहीं है आबरू का, अभी हैंडरेज किसका था? हु इज देयर? हरी आप जल्दी से आ जाएं, इसके बाद एक टेबल रह गया सिर्फ। एनीबडी एल्स, कोई भी जो एक्टिव है इस वक्त? चले मनाल आप ही सुनाइए आबादा। मनाल जेब प्लीज आबादा का टेबल आप सुनाइए।
मैं सुना। चलें अनीसा अयूब सुना दें जी। अबदा उसने इबादत की, अबदु उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबद अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। वेरी नाइस। अबदा अबदू, अबदता अबदतु, अबदतुम अबदना। आखिर में वही अलामतें लगी हैं, कोई और चेंज नहीं है। ठीक है, और शद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दाल और ता की आवाज ता, अबदता ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है ना लफ्ज, इसलिए शद आ रहा है, वरना कोई शद कोई टेक्निकल जरूरत नहीं है। जकरा का टेबल कौन सुना रहा है? अभी हमारी एक और सिस्टर ने हैंड रेज किया हुआ था। जकरा का टेबल। अच्छा, जुवेरिया मुश्ताक आप सुनाना चाहेंगी? जी। सुनाइए। ज़करा इसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र। वेरी नाइस। और ये है उस, इसने नहीं, उसने, उसने, उन सब ने। जकरो जकरू, जकरता जकरतु, जकरतुम जकरना। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सिर्फ 1 मिनट ही मुझे आपका चाहिए। हम अरबी बोलचाल देख लेते हैं और 1 मिनट में क्लास आपकी एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल नसरा क्या उसने पैदा किया, तो आप क्या जवाब देंगे? सब भी माइक ऑन कर सकते हैं, आप इस वक्त सब ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल नसरा क्या उसने पैदा की, उसने मदद की, तो जवाब क्या होगा? नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। अगर मैं आपसे कहूं हल नसरू क्या उन सब ने मदद की, तो जवाब क्या होगा? नाम बोलिए भाई। नसर, जी हाँ उन सब ने मदद की, वेरी गुड। हल नसरता क्या तुमने मदद की, तो आप क्या कहेंगे? नाम नसर तू, जी हाँ मैंने जी हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम क्या तुम सब ने मदद की, जवाब दीजिए। नाम नसरना। जी हाँ हमने मदद की, वेरी गुड। तर्जमा भी करते जाएं ताकि आपको ना टेबल याद हो जाए। अगर जैद, एक समझो एक लड़के का नाम है, अगर जैद के आखिर में दो पेश है ना, तो वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला। और अगर आखिर में दो जबर हैं तो वो ऑब्जेक्ट है। यानी अगर मैं कहूं हल नसरा जैदन, तो इसमें जैद मदद नहीं कर रहा, जैद की मदद कोई और कर रहा है। जैद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर जैद के आखिर में दो पेश होता तो फिर जैद मदद कर रहा होता। मैं आपसे कह रही हूं हल नसरा जैदन क्या उसने जैद की मदद की, आप जवाब क्या देंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी से। नाम नसरा, टर्न ऑन योर माइक। इतनी देर नहीं लगाई क्योंकि टाइम आपका एंड हो चुका है क्लास का। जल्दी से। नसर जी हाँ उसने जैद की मदद की। हल नसरू जैदन क्या आप सबने जैद की मदद की? नाम नाम नसर नसवतु ज़ैदन। जी हाँ उन सब ने जैद की मदद की। हल नसरता जैदन क्या तुमने जैद की मदद की? नाम नसवतु ज़ैदन। जी हाँ मैंने जैद की मदद की। हल नसर तुम जैदन क्या आप सबने जैद की मदद की? नाम नसवना ज़ैदन। जी हाँ हमने जैद की मदद की। वेरी गुड वेरी गुड। बस इस तरह से करना होता है, ये भी आप प्रैक्टिस में आपको दो लफ्ज बता देती हूँ, बाकी आप, आपको स्लाइड्स भेजूंगी, आप होमवर्क के तौर पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हल खला का क्या उसने पैदा किया, ओके। नाम की जगह आपने नहीं कहना तो आप माँ लगाएंगे। माजी की नफी के लिए ला नहीं बल्कि माँ लगता है ज्यादातर। हल खला का क्या उसने पैदा किया, माँ खला का उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू क्या उन सबने पैदा किया, माँ खलकू उन सबने पैदा नहीं किया। हल खलकता क्या तुमने पैदा किया, माँ खलकतू मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम क्या तुम सबने पैदा किया, माँ खलकना हमने पैदा नहीं किया। इसी तरह शै उन सब्जेक्ट है, कोई भी शय चीज, शै अन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं हल खलक शै आ क्या उसने पैदा की कोई चीज, माँ खलक शै आ उसने कोई चीज पैदा नहीं की। क्या उन सब ने की, उन सब ने नहीं की। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन हो चुका है। और मुस्कुराइए। और ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगी ना ताकि आप पिछली चीजें रिवाइज कर सकें। आप असेस कर लें मैंने कौन कौन से टॉपिक अटेंड नहीं किए थे। आप उसके बारे में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको स्लाइड ना मिल रही हो। ठीक है, इस स्लाइड के जरिए आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपने लेसन कुरानी हिस्से में क्या पढ़ा है और ग्रामर में क्या पढ़ा है। जो चीज़ ना आती हो वो मुझसे पूछे, मैं आपको वॉइस नोट पे दोबारा गाइड कर दूंगी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 10 तक हमने 116 वर्ड सीखे हैं जो 28,854 टाइम्स आए हैं, यानी 29,000 तक हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, आपको भी खुशी हो रही होगी यकीनन, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके।
सो दिस इज माई नंबर। मैं फिर से इसलिए सेंड करती हूँ ताकि कोई अगर अचानक से ज्वाइन कर रहा है तो वो ग्रुप में आ जाए और मुझसे रब्ता कर सके। और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप लोग और ज़्यादा एक्टिव हों और ज़्यादा लोग माइक ऑन करके बात करें, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से ताकि मैं क्लास एंड करूं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। बस आपने ये याद रखना है कि सलाम स्टार्ट में भी एंड में भी सलाम का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, एक मुसलमान को ये पूरा करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम।